شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، ٹیم لاہور پوچھتا ہے 2018 سے لے کر آج ریکارڈنگ کے اس لمحے تک عطائیت کے خلاف صفا رہا رہی ہے۔ ہم نے اپنے تائیں جان ماری، ہم نے کوشش کی کہ اس قوم کو، اس ریاستی نظام کو اس چیز کا ادراک کروایا جائے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، لیکن یقین مانے الامان الحفیظ کسی کو فرق نہیں پڑا۔ بلکہ میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ بے پناہ ریاستی ادارے، بے پناہ قانون سازی، سب ٹکے ٹوکری، کسی نہ کام کے نالائق اور نہ کھد۔ دوسری جانب عام شہری، عام آدمی، اس کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی۔ جس پر عذاب پھوٹ پڑتا ہے اس عذاب کی شدت کا اندازہ صرف اس کو ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس سے نکلتا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ جا وہ جا، اور نتیجتاً یہ عطائی ڈھونگی نوسر باز بے لگام پھرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت میرا سیاستدان بھی عطائی ہے، عطائی میرے بیوروکریٹ ہیں، عطائی علاج کا کام کرتے ہیں۔ یہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ 13 سال اس کی عمر تھی، یعنی 13 برس انہوں نے اس کو پالا تھا۔ اب ان کی توقعات اس سے لگ رہی تھیں، امیدیں پیدا ہو رہی تھیں کہ کل یہ بڑا ہو رہا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ لیکن ایک انجیکشن ان کے بیٹے کو ان سے ہمیشہ کے لیے دور لے گیا، اور وہ عطائی ڈاکٹر عمران جو ہے وہ رپورٹڈلی اس وقت تک منظر سے غائب ہے۔ اور ہوگا کیا میں بتاتا ہوں، ان سے بات کرنے سے پہلے بتاتا ہوں کہ ایک پریشر گروپ آئے گا، ان کے سامنے ایک چمکتی دمکتی آفر رکھے گا اور ان کی صلح کروانے کی کوشش کرے گا، اور ایونچولی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ صلح مان جائیں گے، صلح کے لیے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تمام ریاست کے عطائی ملازمین جو ہیں وہ گنگدان بن کے معاملات کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں میرے کو الہام نہیں ہے، لیکن ماضی کی پریکٹس یہ ہے، سمجھتے ہیں ان کا درد، ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا حکم بھائی، پہلے تو اللہ تعالیٰ بچے کو غریق رحمت کرے، آپ کو صبر دے۔ کیا ہوا تھا سر؟ یہ مسئلہ تو اتنا نہیں تھا، بس رات کو قریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے ایک دفعہ الٹی کیا تھے، 2 دفعہ پخانے کیے بیٹے نے؟ ہاں جی۔ کیا نام تھا؟ وہ نام نبی۔ اس کے بعد صبح کا ٹائم تھا قریباً 9-10 بجے، تو میں اس کو بتایا، میں کہا آ جاؤ چلیے ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا اور بہت زیادہ نہ ہو جائے مسئلہ۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے، چنگا پالا ٹھیک تھا، یہ نہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس لگا ہی نہیں اس کو، اس کے بعد عمران کے پاس تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ وہ اس ٹائم میں نے کہا چل شاید اس کے پاس ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پاس لے کے آیا تو بچے کو بخار بھی تھا، تو انہیں ادھر بٹھایا، لکھا ہے ٹیکا، لکھا ہے ٹیکا لگایا۔ میں نے بولا ڈاکٹر صاحب اس کو تو بخار بھی ہے، کہندا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا بہتر۔ کتنے دیر رہا ہے اس کے پاس، عمران کے پاس؟ قریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اچھا۔ ٹیکا لگایا تو بعد کہہ رہے ابھی صبر کر، آدھا گھنٹہ اس کو بٹھاؤ، تو اس کو ڈرپ بھی لگانے۔ اچھا جی، یہیں پہ اپنے کلینک پہ؟ ہاں جی۔ پھر ڈرپ لگایا، اس کے بعد گولی بھی دیتا ہے، گولی بھی بچے نے کھایا، نال دوائی دیتا ہے، دوائی بھی کھا بیٹھا۔ ڈرپ جب آدھا رہ گیا، یہ جو بچے کا جسم ہے یہ کالا کالا ہو گیا، دانے دانے بن گیا۔ یہ تمام چیزیں سنیں، ہیلتھ سسٹم کے تمام لوگ سنیں کہ آپ کے کرتوت کے کچے چٹھے کھل رہے ہیں، کہ آپ تنخواہیں لیتے ہیں ہر مہینے، آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔
कैसे गरीब आदमी अपने बच्चों को खो रहा है। ये अब जो कहानी 3 बजे के बाद है, ये बच्चा खोने वाली कहानी शुरू होने लगी है। जब उसके जिस्म जरा काला काला बन गए, इसके पास में गया, मैं कहा डॉक्टर साहब आज ये बच्चे को चेक करो, इसके जिस्म तो सारा दाने दाने काला हो गया। वो उठ के आया, जब चेक किया कहते कोई मसला नहीं, हो जाएगा टीका लगाने। उसने मुंडे को आवाज दिया, कहते इसको एक और टीका लगाओ। ये मुझे नहीं पता क्या चीज का टीका लगाया, आपने लगाने दिया? डॉक्टर वो था, मुझे तो नहीं पता क्या चीज है। नहीं डॉक्टर अभी तुम जब पहले नहीं पता था कि डॉक्टर नहीं पता था, आगे भी असर नहीं पता था हमें। तब जब टीका लगाया बच्चे जब बच्चे में जिस्म में सारे जिस्म जो है वो सारा खराब हो गए। इसको मैं बोला हाँ ये जो आप है ये चला गया बाद में, किधर ये निकल गया, ये नहीं था। और लड़का था वो बैठा था, उसके पास में आया, मैं कहा यार वो बच्चे का जिस्म देख क्या बन गया। वो आया, उसने बोला यार इसका कोई मसला नहीं है, टीका लग गया, ये हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मसला इसका कोई भी नहीं है, घंटे बाद ये ठीक हो जाएगा। जब मुंडा इधर से मैं लेके गया, दवाई देता ही पैसे दे गया, घर नहीं लेके गया, घर से थोड़ा जरूरा ले गया। बच्चे ने क्या, मेरा अबू जिस्म जलन हो रही है, जिस्म सारा मेरे जलन हो रहा है, रिएक्शन हो गया। हाँ जी। इसके बाद मैंने डायरेक्ट लेके गया जना हॉस्पिटल। अच्छा जी। जब उधर ले गया, मैंने मोटरसाइकिल से उतारा थे, बच्चे आगे बैठाया था, नहीं कोई नहीं था। जब मैं आगे बच्चे ने उठाया, बच्चे को बैठाया, और ने कहा अब्बा मैं आप नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने मोटे पे ऐसा चौक के ले गया अंदर। जब ले गया, ये जब आधे रास्ते में गया, बच्चे ने ऐसा कितना कहता डोलना शुरू। हाँ मैंने क्या पता नहीं, बच्चा ठीक नहीं लगता मुंडा। अंदर ले गया, जब उधर बैठाया बेड में, ते डॉक्टर सारे आ गया। डॉक्टर ने टाइम नाल बताया कहते केड़ा टीका लगाया बच्चे को, उन्होंने पता लग गया, मुझे भी पता, मैं कह दाने कैसर निकला। उन्होंने ना लिखा, कहते केड़ा टीका डॉक्टर ने लाया थे, टीका केड़ा लग गया इनू। मैं कह ये नहीं पता, दवाई भी होना था आपसी, तो डॉक्टर भी आपसी। उन्होंने फिर मुझे जो बच्चा चेक किया ना लिया, उन्हें मैंने क्या खान दवा करे करो, थोड़ा बच्चा सीरियस है, ठीक नहीं है। करीबन 1 घंटा और रह गया, बच्चा इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन साहब ने अपना बच्चा खो दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अतायत हर गली में, हर मोहल्ले में है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी को कोई हदायत आएगी। आपके पास DDHOs हैं, आपके पास हेल्थ स्टाफ है, आपके पास मेडिसिन को समझने वाला स्टाफ है, आपके पास हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने पकड़ कर रताई दी है यार। वो चौथे दिन उनकी 500 रुपया रिश्वत बढ़ती है और आके फिर दुकान खोल लेते हैं। सर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। कभी आप अपनी मोटर बाइक या गाड़ी ठीक करवाने के लिए बारबेक्यू वाले के पास गए? कभी नहीं, कभी नहीं। आप गए होंगे। हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चे को अपने इलाज के लिए देखते कि यार हम जा कहाँ रहे हैं, क्या ये बताई तो नहीं है? देखिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जहाँ पे भी वो होते हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम पहुँच जाती है। अच्छा, सबसे जो मेन बात है इसमें, जो करने वाली बात है वो ये है कि इसी डॉक्टर की वजह से 2-3 पहले बच्चे भी यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं, यहीं पे यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, ये 4था-5वां बच्चा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जहाँ पे जो भी लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने इनसे पहले भी इसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह क्या है? एक सेकंड। आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले ही बंदे मरे हुए हैं? आपको पता है? मैं तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले ही बंदे मरे हैं? बिल्कुल, ये 5 आपको पता है? जी भाई, जी चाचा आपको पता है? यहाँ कई आपको पता है कि इमरान की वजह से पहले बंदे मरे हैं? 4-5 बजे एक दिन मेरे साथ भतीजी थी, शाम को टाइम उसको मोशन लगी थी, जब वो उनके लेके गए थे, मेरे वालिद साहब लेके गए थे। आपको पता है पहले भी बच्चे मरे हैं? पहले भी बच्चे मरे थे। यार फिर क्यों जाते हो ऐसे ताइयों के पास? पहले भी बच्चे मरे हैं, 3-4 पहले भी मरे। कर के पागल हो चुके हैं, तो उसी के पास फिर चले जाते फिर हो? वो चले जाते हैं। हम तो फिर नहीं किया है, हम उसके पास आप जाने जिसके हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे ये है कि ये जो है ना, एक तो ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा ये, हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बोर्ड इलाज भी करते हैं। आप जाएं उसका बोर्ड देखें, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ वालों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इनके जो इंस्पेक्टर हैं, इनके जो लोग हैं, ये पैसे लेते हैं, और पैसे मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल इमरान तो है, मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल सीधा हेल्थ वालों को कहता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने
DDHO आया आपके पास कि भाई बच्चा मर गया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। jurisdiction में। मैं इनको क्यों इस वजह से कहता हूँ, इन्होंने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं लोगों के बच्चों को मारने का, हेल्थ वालों ने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ये गरीब इलाका है, यहाँ पे कंजस्टेड इलाका है, गरीब लोग हैं यहाँ पे। जाहिर है कि एक क्लिनिक नजर आता है तो ये वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन हेल्थ वालों को देखना चाहिए कि जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, वो ठीक है कि नहीं। वो अतायत से मतलब एक अताई बैठा हुआ है, वो लोगों को बच्चों को मार अच्छा, रहा है। पाकिस्तान में एक अजाब और भी है। पूरी दुनिया में हर क्लाइंट को और हर पेशेंट को ये जानने की इजाजत है कि जिस बंदे के पास वो जा रहे हैं वो कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा पूछेगा तो उसको एक चपेट इधर से पड़ेगी, दूसरी चपेट इधर से पड़ेगी कि तू होता कौन है। और नतीजा ये निकलता है कि जब किसी शख्स को हाजत होती है, जरूरत होती है, वो कहता है भाई गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और वो उसके पास पहुंच जाता है इलाज के लिए। इनका एक भाई जो है वो भी फौत हुआ है। जी, आपके साथ भी इसी जगह ही हुआ ऐसे है? हुआ है, 6 क्या महीने हुआ था पहले बताएं। वो बुखार हुआ था थोड़ा, ते आयज ने टिकल आया, दाना बन गई। कितना अरसे पहले की बात है? ये 6 महीने की पहली बात थी। क्या उम्र थी भाई की? 18 साल उम्र थी। फौत हो गया? फौत हो गई। इसी डॉक्टर के इसी पास? डॉक्टर ने। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस वासी नहीं था हमारा। हैं? वालिद साहब कह रहे कि छोड़ इसके साथ क्या करना है, बस क्या करना। अगर उस दिन आपने इसको ना छोड़ा होता तो आज इनका बच्चा ना मरता। तो सर देखिए क्या करें, मुझे एक बात बताएं, FIR होती है 322 की FIR होती है, 322 के FIR की फोकियत क्या है? मैं बताता हूं। एक आदमी जो है ना, एक आदमी एक बच्चे को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, 322 की FIR मैं बता देता हूँ जी। 322 की FIR जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं हो सकती। इस जालिम इंसान ने अदालत पेश होना ही होना है, या ये इश्तिहारी होगा या अदालत पेश होगा। जिस वक्त इनको ये बात समझ आती है कि भाई कोई ऐसा शरीफ आदमी है तो वो इनडायरेक्टली इनसे राब्ता करते हैं, और फिर कोई ना कोई घर का बुजुर्ग जो है वो कह देता है जी छड़ो जी मिट्टी पाओ ने कड़ा जान के कीता है। वो कहते हैं कि जी इसने कौन सा जान के किया है। लोग झुक जाते हैं। आपको पता है कि इसमें सजा कम से कम क्या है? दियत। जी दियत है, दियत है। इसको बंदे को दियत देनी पड़ती इनकी, तो इनका बच्चा ना मरता। सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने, मेरी एक हम्बल सबमिशन है, आपको एक दरखास्त है कि आपने झुकना नहीं है भाई। आप लोग साथ देंगे इनका? साथ देंगे, इनका साथ देंगे कि इनको डराएंगे? इनको डराएंगे तो नहीं। सर ये आपकी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपने इसके सामने झुकना नहीं है अगर वो वाकईयत आई है तो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ भी ये वाकया हुआ है? ये हमारा बेटा है भाई की शादी था 10 महीने पहले, तो सुबह टाइम था, मैंने भाई ने इधर लेके आया तो इसने एक टीका लगवाया, इमरान के पास। तो इसने एक टीका लगवाया और शरबत दिया। 1.5-2 घंटे बाद भाई बेटे को एकदम बस मसला आ गया, ज्यादा हो गया। जो मैंने चिल्ड्रन अस्पताल, जुबैर, अच्छा, जब वो चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गया तो अस्पताल में वो डेथ हो गया। तो आपने कोई कार्रवाई की? बस कार्रवाई तो हम गरीब आदमी। गरीब क्या होता है यार, आपने जाके दरखास्त देनी है, आपके सारे भाई आपके साथ हैं, अल्लाह साथ है। लेकिन अभी नहीं हुआ, ये लोग बात नहीं सुनते है बस। अगर आपने भी कोई कार्रवाई की होती तो इनका बच्चा बच जाता, या आपसे लेकिन पहले वाले ने की होती तो आपका बच्चा बच जाता। आप समझ रहे ना, ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसी और का बच्चा जाएगा। भाई इस लापरवाही की वजह से ये काम हो गया, हर बंदे के साथ होगा इंशाल्लाह। हर, ये देखें जी, एक बच्चा ये जी जो बताया जा रहा है कि इस मुबैना ताई के हाथों मरा है। दूसरा बच्चा ये है जी जो इस मुबैना ताई के हाथों मरा है। तीसरा बच्चा इनका है, और बच्चे भी हैं, मैं उनकी फैमिली से भी आपको मिलवा रहा हूँ। एक हम्बल सबमिशन है, एक दस्तबस्ता दरखास्त है, रियासत करे ना करे हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे रियासत से शिकवा नहीं है, मुझे रियासत के उन सरकारी मुलाजमीन से शिकवा है जो 1 तारीख को तनख्वाह ना आने की सूरत में, थब्बू की सूरत में ऑल फॉल बकते हैं रियासत के बारे में। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि मेरा सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद, डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद, डॉक्टर इमरान मुर्दाबाद। वो कहते हैं ना, आब आब कर मोयो बचड़ा,
फारसियान घर गाड़े, ये एक माँ ने कहा था। हुआ क्या कि किसी माँ का बच्चा मर गया, तकलीफ था, इस्तराब की हालत में था। लोग आए, किसी सयाने ने उससे पूछा कि बीबी होया की सी? वो कहती है, वो देसी खातून थी, वो कहती है कि पता नहीं की होया सी, आप पे करदा सी। उस बंदे ने उसको बताया कि बीबी वो तो इसे पानी मांग रहा था। तो उस माँ ने फिर ये बात कही कि आप कर मोयो बचड़ा, फारसियान घर गाले। इसके बाद उसने और भी गुफ्तगू की, लेकिन मकसद ये था कि जो लैंग्वेज का गैप है, उस गैप की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मुझे पता होता कि इसको पानी चाहिए तो मैं इसको प्याले भर के पानी पिलाती। ये बिल्कुल वही चीज है कि जो आगाही का गैप है, ये उसकी वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शख्स या बच्चा मौत के घाट उतर है। और यह तख्ते लाहौर और है 2023 का जदीद दौर। क्या वाकई है? अलमान अल हफीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मदरसे के ये बच्चे थे? मुझे सबसे बड़ा सदमा है कि ये तीसरा बच्चा हमारे मदरसे का है कि इंजेक्शन की वजह से मर रहा है। 1.5 साल पहले सिराज टाउन के अंदर एक बच्चा हमारा मुरसलीन था, सख्त बुखार के अंदर गली महल्ले के डॉक्टर ने, इस अताई के डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और वह फौत हुआ। 3 पारों का हाफिज था। और 6-7 मंथ पहले बिस्मिल्लाह नाम का बच्चा हमारा, जो 15 पारे हमारे पास हिफ्ज़ किए होते और हाफिज बच्चा था, उसको इंजेक्शन लगाया और उसको इस डॉक्टर की वजह से, इस इमरान की वजह से। और तीसरा ये बच्चा, ये भी हमारे इदारे का स्टूडेंट था, ये भी इसको एक दफ़ा इंजेक्शन लगाया और फिर घर वाले दोबारा लेके गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, और इंजेक्शन लगा के और इसको बीमार किया। ये सबसे बड़ी बात। कत्ल 2 किस्म का होते हैं, कत्ल ख़ता होते हैं, कत्ल आमद। हम ये नहीं कहते कि ये कत्ल ख़ता है, मगर इस कत्ल ख़ता के पीछे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ये कत्ल आमद में आते हैं। इनके पास क्या होता है, जब लोग आते हैं तो इन्होंने इंजेक्शन पहले से भरे होते हैं और एक डब्बे के अंदर हर बंदे को वो इंजेक्शन, हाँ, वही इंजेक्शन। अच्छा, पहली बात ये कि वो इंजेक्शन जब कम होते और डाल देते। एक ऐसा इंजेक्शन भी होता है उसमें 2-3 दिन गुजर जाते हैं, वो तो जहर बन जाता है। तो ये कत्ले खता नहीं बल्कि कत्ले आमद में बनेगा, इसलिए बाकायदा इसको मारा है। इसकी मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई इस्लाम या दीन समझने वाला शख्स मुकम्मल ना जानता हो, मुकम्मल ना समझता हो, तो हम उसको भी अताई मानेंगे भाई? अगर हम उससे दीन की रहनुमाई लेने नहीं जाएंगे तो एक वो शख्स जो डॉक्टर है नहीं, प्रॉपर्टी डीलर है बताया गया, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास इलाज करवाने के लिए जाना दुरुस्त होगा? असल में ये सबसे अहम बात जो है हमारी कौम इससे पूछती है, हेल्थ के डिपार्टमेंट से, कि ऐसे लोगों, आम लोगों को, आवाम को तो नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं। मेडिकल स्टोर बन गए, ये डॉक्टर के उन्होंने बना दिया, क्या नाम है, शॉप बना ली है। अब हेल्थ वालों का काम है। गए किसी जगह पर, किसी मेडिकल स्टोर पर, तो आपने, मैंने या किसी ज़ियाद बकर ने उन्हें कहा कि भाई हम पहले आपका लाइसेंस देखेंगे, आवेजा होना चाहिए था यहाँ पर, उसके बाद आपसे दवाई खरीदेंगे? किसी का नहीं सवाल है। कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की इजाजत वहाँ आवेजा ना हो और आप कहें कि भाई पहले मैं वो देखूंगा उसके बाद आपसे इलाज? ये हम, हमारी कौम के अंदर शऊर कम होने की वजह से ये सवाल करते नहीं है। आर्जी जब तकलीफ होती है तो वो भागा जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। तो ये हमारी कौम के अंदर शऊर ना होने की वजह से। मगर इससे बड़ा जो मुजरम मैं समझता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट को समझता हूँ, जिस इलाके के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ के चक्कर लगाते हैं, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, ये सबसे पहला केस उस आदमी पे होना चाहिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, जो उस इलाके का। उसने कैसे इजाज़त दी, उसको पता नहीं है। अभी ये फरार है डॉक्टर सॉरी, मैंने माफ करना पाए तो डॉक्टर नहीं हो, अताई हो। अच्छा, ये अताई इमरान जो है, रिपोर्टेडली जो अताई है, ये फरार है। अब ये इनसे राब्ता भी इनडायरेक्ट करेगा, तो उसके बाद इन्हें क्या करना चाहिए? भाई, जो इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं कहा ये कत्ले खता नहीं है, ये इंजेक्शन भरकर रख लेना। आप कहते हैं इसमें ये कत्ले आमद है, बनती है? जी बिल्कुल बनती है, कत्ले आमद है, ये कत्ले खता नहीं है। मैं इन सब लोगों को एक बात हकीकतन बताना चाहूँगा, ऑन कैमरा बताना चाहूँगा कि जब मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे हर प्रोग्राम करने के 1 हफ्ते बाद कम से कम उस इलाके से लोग वीडियो बनाकर भेजते हैं कि भाई आप यहाँ जान मार के गए थे, ये आप पर हमला कर रहे थे, कितने नफलों का आपको सवाब हुआ है? वो तो दुकान खोल के फिर खुद बैठा हुआ है। और हम मुतल्लिका DDHO से बात करते थे
तो मुतल्लिका DDHOs का रटा रटाया फिक्र है कि भाई हम कर नहीं सकते, हमें इख्तियार सिर्फ इतना है कि हम उसको सील करेंगे और वो सील तोड़कर भी बैठ जाएगा तो एक FIR दे सकते हैं, थाना उनके साथ है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ है, हर चीज़। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी रिश्वत की कीमत में इजाफा हो जाता है। हम बदकिस्मती से उस निज़ाम में बैठे हुए हैं जहाँ इंसानी जान की वक़्त कदर व मंजिलत ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ भाई? ये भाई जो है ना, ये डॉक्टर के पास लेके गए। इसका हल क्या है? ये तुमने सुन लिया सर। इसका हल ये है कि इनको जो है ना इंसाफ दिलाया जाए। कैसे? कि उनको ये पता लग जाए कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं। इस इलाके का जो है ना डॉक्टर ना होने के बराबर। बस ये तो बाप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? इसको फांसी होना चाहिए बस, और यही कानून में इसको फांसी नहीं हो सकती। आगे बताओ। बस इसको आगे जेल में पहुंचा। ये जेल में जाएगा, आपके पास दियत की ऑप्शन मौजूद होती है, वो भी सिर्फ उस सूरत में दियत गुनाह नहीं है, वो अल्लाह के नबी का और अल्लाह का फैसला है, हमें उसको गुनाह के तौर पर नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं? आपको इसका सीना बसीना मुकाबला करना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? करेंगे कि डर जाएंगे? नहीं, क्यों डरे? करेंगे डर जाएंगे? इंशाल्लाह मुकाबला करना चाहिए नहीं? इंशाल्लाह करेंगे, मुकाबला करेंगे। जालिम का मुकाबला करना चाहिए नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए। जालिम का मुकाबला करना चाहिए नहीं? करना चाहिए? चाचा जी करना चाहिए नहीं? करना चाहिए? भाईजान इंशाल्लाह करना चाहिए, मसलियत में आ जाना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अभी कोई तगड़ा बंदा आएगा, कोई MP MNA का कन टूटा आएगा, वो आके इन्हें कहेगा कि वो फलां साहब बुला रहे हैं यार। हमारे पठानों से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। अगर उस साइड पे इन्होंने आना है तो फिर उस साइड पे। तो अगर आपकी तरफ से कोई बंदा इस मामले को नहीं करेगा, इंशाल्लाह नहीं करेगा। सामने बैठा हुआ है, हमने पहले भी बात की कि जो भी बात करनी है जरगे को सारे अपनी अवाम जो यहाँ पे इकट्ठी हुई है उनको इत्माद में लेके बात करनी है, जो भी करना है, ठीक है ना, इत्माद में लेके करना। और ये आप हकीकत बात कर रहे हैं, होता है सही है। उसकी वजह ये होती है कि केस चलता है, मामला चलते हैं, उसके बाद चीज़ें उस साइड पे चली जाती हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, रफा दफा करने के चक्रों में चली जाती है, लेकिन होना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर पहली दफ़ा ना होता दूसरा बच्चा ना जाता, दूसरी दफ़ा ना होता तीसरा बच्चा ना जाता, तीसरी दफ़ा ना होता तो ये एक और फूल ना जाता। तो बात जहाँ तक डराने की बदमाशी की है तो फिर एक काम कर लें, रियासत बीच में से पीछे हो जाए, रियासत बीच में से पीछे हो जाए, फिर ये हमारे साथ सामने आ जाए तो वो भी कर लेते हैं। मैं रियासती इदारों से ही दस्तबस्ता दरखास्त करूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बच्चे क्या रोज़े मैशर एक लम्हे सोचें कि DDHO साहब अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं और बड़े मोतबर अंदाज में कि अल्लाह मैं तो सारे काम करके आया। इधर से एक बच्चा निकलता है, वो आके आपके गिरबान पकड़ लेता है, कहता तुम्हारी वजह से मैं मरा था। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है जनाब हेल्थ मिनिस्टर साहब आपकी वजह से मैं मरा था। आपको मुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए आज काम करने की जरूरत है, जिसमें बदकिस्मती का मामला नजर आता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, नवाज मोड़ बागड़िया पर मौजूद है और ये बंद दुकान जो है ये बेसिकली मदीना मेडिकल स्टोर था और इसके ऊपर जो फ्लेक्स लगी हुई थी इसको फाड़ दिया गया अभी बच्चे की हलाकत के फौरन बाद। और इसकी फ्लेक्स जो है उसकी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। दूसरी जानिब ये बैनर आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अब हो क्या रहा है कि एक शख्स उसको जिस काम में फायदा नजर आता है वो शुरू कर देता है। यहाँ इस वक्त उसको अतायत में यानी मेडिसिन की ऐसी प्रैक्टिस करने में उसको फायदा नजर आया जो इंसानों की जान ले जाता है। और यहाँ कई बच्चे जो हैं, कई नौजवान जो हैं, वो बताया जा रहा है कि वो इस शख्स के खाते पड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर के रिहायशी हैं? ये डॉक्टर साहब थे? ये डॉक्टर इमरान के नाम पर मशहूर था। ये अच्छा जी, ये मेडिकल स्टोर के नाम से था। तो अंदर मरीजों को इंजेक्शन और दवाइयाँ वगैरह दी जाती थी। अच्छा, वो टीके शीके ड्रिपें ये करता था, कंप्लीट काम करता था। और उसका नतीजा आपके पास पहले 2-4 बच्चे मर चुके हैं, फिर लोग बच्चे लेकर चले जाते, लोगों को समझाते थे। कितने को ऐसे अताई बैठे में यहाँ इस इलाके में? हर गली में 3-4 हैं। हर गली में 3-4 है।
तो इनको प्रैक्टिस ये कैसे कर लेते हैं? ये बस ऐसे किसी का तो ही पेट भरते हैं, ऐसे ही होता है जैसे हो गया ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। DDHO साहब जो हैं, जब तक उनके साथ उनका कोऑपरेट इनके साथ नहीं हो तो आपको पता है ये कोई चीज़ चल नहीं सकती। डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट सारा उनके पास है और पैसे जाते हैं, खुले पैसे जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि बिल्ले नू दुध दी राखी बिठाया जाएगा तो की होएगा। तो यहाँ लाहौर में भी अनफॉर्चुनेटली बिल्ले जो हैं उनको दूध की रखवाली पर बिठाया हुआ है, तो फिर शिकवा किस बात का है? मेरी दुआ है अल्लाह ताला के हजूर कि या अल्लाह इनको नकेल डाले, मेरे सरकारी मुलाजमीन को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, या फिर विद अ हैवी हार्ट में ये कह रहा हूँ कि जिस तकलीफ का शिकार ये लोग हैं, ना ही कहूँ तो अच्छा है, खुद अकल कर लें यार। खुदा न खास्ता आप में से किसी का बच्चा किसी ऐसे अताई के हाथ चढ़ जाता है और उस वक्त जब आपके पास इख्तियार और ताकत ना हो तो आप अपने सर में मट्टी डालने के अलावा कर क्या सकते हैं? लम्हा फिक्रिया है। और मैसेज ले लेते, कोई पैगाम सर? भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें पैगाम कोई, उसको फांसी होना चाहिए, पैगाम हमें इंसाफ चाहिए, पैगाम इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होना चाहिए। ये डॉक्टर नहीं कातिल। जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं सबसे पहले इन पे कोशिश करनी चाहिए कि गली गली में इन्होंने अताई डॉक्टर बिठाए हुए हैं, लोगों को मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। जब तक हमारा ये महकमा ठीक नहीं होगा इस तरह इमरान गली गली में लोगों को मौत बांटता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली पैगाम है साहब। बस जी ये गवर्नमेंट से ही हमारा गिला शिकवा ज्यादा है कि गवर्नमेंट के मशवरे के इनका बगैर गिरबान पकड़ोगे क़यामत के दिन के डरते होगे? नहीं, हमने तो अभी पकड़ोगे, पकड़ेंगे, पकड़ेंगे इसको क़यामत से पहले, इंशाल्लाह क़यामत तक जाने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह। इनका गिरबान क़यामत के रोज पकड़ेंगे इंशाल्लाह, पकड़ेंगे, पकड़ेंगे इंशाल्लाह, पहले पकड़ेंगे क़यामत के रोज। मैं पहले की बात नहीं, पहले पकड़ने का तरीका कानून है, इंसाफ ने हम खुद गिरबान से पकड़ेंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये दर्द तकलीफ है आपके सामने रख रहे हैं और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, नहीं तो जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।